أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ كيف حالكن يا أخوات؟ الحمد للہ نحمد بخیر خیر۔ الحمد للہ الحمد وإياك۔ للہ ثم الحمد للہ۔ اچھا جی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، ہمارا کورس 5، اور آج ہمارا انشاءاللہ 19واں پیج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اشارہ ڈی، صفحہ 19 اشارہ ڈی، یعنی کہ اس پیج کا آج ہم آخری والا حصہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں صرف ایک آیت مبارکہ ہے۔ یہ آیت ہوگی ہماری 134۔ اچھا جی، ہم نے بار بار ہر بار کلاس سے پہلے دیکھا کہ ہم کیا کرتے آئے، کیا پڑھتے آئے۔ QC6 میں تھوڑا سا پھر چینج ہو جائے گا، پیٹرن پڑھنے کا طریقہ کچھ یہ اشاروں وغیرہ والا تھوڑا تھوڑا سا چینج ہوتا جائے گا۔ تو جتنا ٹائم آپ کے پاس فری ہوگا آپ دیکھیے گا کہ جتنا ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس میں اب یہ کر سکتے ہیں کہ جو جو گرامر اب پڑھتے جا رہے ہیں آپ شروع کریں پارا کو۔ جیسے ہم نے انا والے کانا والے جملے ڈھونڈے تھے، اب اسی طرح سے جو ہم مفعولات یا منصوبات پڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں ان کو آپ ضرور دیکھا کریں، تلاش کیا کریں، جو مل جائے اسے آپ گروپ میں سب کے ساتھ شیئر کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ پوائنٹر اسی طرح سے ہم نے QC 2، 3، 4 اور 5، اب یہ ہمارا انشاءاللہ جز کمپلیٹ ہونے والا ہے، پہلا پارا۔ ہم لوگوں نے ہدایت سے شروع کیا تھا، کیونکہ ہدایت جسے اللہ چاہے نصیب فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی موجود تمام لوگ اسلام نہیں لائے، حالانکہ ان کے تو سامنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو متقین تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس طرح کے پورے پورے اسلام میں داخل ہو گئے۔ انکار کرنے والے کافرین کہلائے۔ پھر ایک اور مزید گروہ تھا جو ظاہری طور پر تو مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے، لیکن وہ در پردہ مسلمانوں کے خلاف تھے، انہیں منافقین کہا گیا۔ اس کے بعد ہم نے کافی سارے اشارے پڑھے اسی سے ریلیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مکہ میں یا مدینہ میں جو موجود لوگ تھے یا جو عرب لوگ تھے، جو ہر بات کو اسی طرح سے سمجھ رہے تھے جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان آیات کو اتار رہے تھے، اس کے باوجود وہ جانتے بوجھتے بھی کر رہے تھے، اس سے انکار کر رہے تھے۔ پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مختصراً پڑھا، جس سے ہمارے کچھ کانسیپٹس جو غلط طور پر یا جیسے کہہ لیں کہ سنتے سناتے ہم تک پہنچے تھے وہ کلیئر ہوئے۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور یہ قصہ ہم نے کہاں تک کمپلیٹ کیا؟ صفحہ نمبر 17 تک۔ صفحہ نمبر 18 پر آتے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ اب یہ چونکہ چل ہی رہا ہے یہ سلسلہ تو اسے ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارا 16واں 17واں 18واں پیج کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ آج ہم اپنی چوتھی انگلی یعنی کہ 19ویں پیج کا آج آخری اشارہ کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو؟ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کرے، بے علم کہیں کہ بات کرے اللہ۔ اب آپ دیکھیں، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، پھر وہاں دوبارہ سے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹا لے لیا، اور ایک کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے۔ نہ راضی ہوں یہود و نصارہ بنی اسرائیل، یاد کرو نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں۔ بیت اللہ کو آپ نا مضاف مضاف لے اس جوڑی کو بیت اللہ ہی کر کے اگر پورا کر لیں گے نا تو یہ انشاءاللہ آپ اس کو ریفرنس بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا گھر، ترجمہ بھی یاد ہوتا ہے، اور یہ چونکہ ہم اس کو اسی طرح سے یاد کرتے ہیں نا کہ بیت اللہ
پھر اس کے بعد کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب کی، یعقوب علیہ السلام، اور اب آج کا جو اشارہ ہے وہ امت گزر گئی. ٹھیک ہے کیا جی. اور ہم نے اگر ریلیٹ نہیں کیے تھے اشارے تو یرفع قواعد، اور اس کے ساتھ میں نے کہا تھا ربنا ربنا ربنا، دعائیں ان کو آپ کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں. اس کے بعد ہے کون منہ موڑے، وَمَن يَرْغَبُ ان جو ہے یرغبو کے ساتھ آنے کی وجہ سے منہ موڑنے والا ترجمہ تھا. اس کو آپ یہاں سے ملت ابراہیم، یہاں سے آپ ہائی لائٹ کر لی. اب یہاں پر وصیت کی بات ہو رہی ہے، ساتھ ابراہیم اور یعقوب کو ہائی لائٹ کر لیں. اس کے بعد آج کا ہے وہ امت گزر گئی. امت ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے، باقی دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اور کس طرح سے آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. اور اگر مختصر اشاروں کی بات کی جائے، تعمیر، ملت، وصیت، امت. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اگر اکٹھا سب کو بولنا ہو تو علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بہترین کاموں کا ذکر فرمایا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب لوگ تم کو صرف اس وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کہ تم ان سے تعلق رکھتے ہو. فائدہ اس وقت پہنچے گا کہ جب تم عمل بھی کرو گے، کیونکہ اگر اس لڑی کو یا اس چین کو ہم بہت پیچھے تک لیتے جائیں تو ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کے نہ صرف پیغمبر تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا، تمام انسانوں کے وہ باپ ہیں. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو پھر تو ہم سب جنت کے حقدار ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال پر یہ سارا سلسلہ رکھ دیا، دنیا کا اور آخرت کا، کہ جو دنیا میں اچھے کام کرے، اچھے اعمال کرے، صرف اس کا فائدہ اسے خود پہنچے گا. اعلیٰ نسب کا ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. مسلمانوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ کچھ گروہ ایسے بن گئے، گروپ ایسے بن گئے کہ وہ اس طرح سے بات پھیلتے پھیلتے عام ہو گئی، غلط العام ہو گئی کہ جب ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو ان کے ساتھ ہم بھی بخش دیے جائیں گے. ایسی چیزوں سے ہم نے بچنا بھی ہے اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. تمہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا، جو پہلے لوگ کر گئے اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اچھا جی، آج کی آیت مبارکہ بھی بہت چھوٹی سی مختصر سی ہے اور آج کوئی نیا لفظ نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. خود کو ایک دفعہ QC1 سے پہلے کی طرح سے روٹین پہ رکھ کر دیکھیں کہ کیا ہم ان الفاظ کے بارے میں جانتے تھے، سوائے ان الفاظ کے جو ہمارے اردو سے ملتے جلتے ہیں. اگر ہمیں بہت بھی سمجھ آ جاتی تھی تو کیا سمجھ سکتے تھے ہم اس میں؟ لا، کیونکہ لا ہم اردو میں بھی نہیں والے معنوں میں لا الہ الا اللہ ہمیں پتا تھا. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ پاتے تھے. ہاں، لفظوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لفظ ہمارے جانے پہچانے ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ کھولا. اب ہم نے رکنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے، تاکہ قرآن کو جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہم تک پہنچایا، اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے ہم تک پہنچایا. جس طرح سے یہ دیکھیں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ اسی طرح سے محفوظ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر نہ صرف عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اس کو ہم پھیلائیں بھی. جتنا ہم سیکھتے جائیں ہم حدیث کے دونوں پہلوؤں پر عمل کرتے جائیں. یہاں پہلے ہم کر لیتے ہیں تلاوت، پھر ہم دیکھیں گے ترجمہ اور لفظی ترجمہ اور ترکیبیں وغیرہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم.
अच्छा जी, ये आज की जो आयत मुबारका है, हमने देखा कि इसमें कोई लफ्ज नया नहीं है। चलिए उस चीज को थोड़ा सा हम साइड पे रखें, कुछ यहाँ पर पहले देखते हैं कि अगर आपको इस तरह से इसमें से समझ आ रही है, जो उससे पहले देख लेते हैं। अच्छा जी, ये एक जमाती तहकीक गुजर गई उसके लिए है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, और नहीं पूछे जाओगे तुम उसके बारे में जो वो अमल किया करते थे या वो जो अमल करते थे। अच्छा जी, सबसे पहले हमें नजर आ रहा है तिलका उम्मतुन। तिलका के बारे में जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए कि हमने मुब्तदा, मोनस ये मुब्तदा है। नहीं, सवालिया अभी अभी जुमला। मुब्तदा की बात बाद में करते हैं। ये मुअन्नस के लिए है, ठीक हो गया। और ये है क्या, इसकी अपनी पहचान इसम क्या होगी? इसम कौन सा है? इशारा, इसम इशारा। इशारा। इसम इशारा है, ठीक है। और अच्छा अगर मैं कह देती हूँ, जी जी सिस्टर, इधर पूछिएगा। लिखा है ना, ये एक जमात थी। हमारी बुक्स में लिखा है ये एक उम्मत है। हाँ ठीक है। है, वो आप बुक को फॉलो कर लीजिए। स्लाइड्स भी तो बाद में बनाई गई होती है ना, तो है भी है ठीक ना, है तो एक, लेकिन ये कि अगर आप उसमें कद माजी देखेंगे तो फिर वो भी ठीक है तर्जमा। ये एक जमात थी तहकीक जो गुजर गई, ठीक है। आप बुक को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बुक से ही मोस्टली आपके जो तर्जुमे देखे जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि ये इशारे की जोड़ी है, तो क्या मैं ये सही कर रही हूँ बात? नो सिस्टर, नो। नहीं नहीं। इशारे के लिए अलिफ अब आप चाहिए मुझे ना बताइए वाजिब। कि ये इशारे की जोड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उम्मत हमें के मजीद साथ तिलकल अल उम्मतुन, होना चाहिए। उसे अल लगाना पड़ता है। ठीक हो गया। अब ये बात हमें समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से कि अगर अल आ जाएगा तो ये हमारा, जिसको हम कहते हैं ना मुरक्कब, ये नाकिस हो जाएगा, नाकिस नुक्स वाला। यानी कि पूरा तर्जुमा हमें समझ में नहीं आ रहा ये या वो जमात, ठीक है। अब एम्फेसिस के लिए, ताकीद के लिए तिलका का माना इस तरह से ये वाला कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये है तिलका उम्मतुन। अब जो सिस्टर मुझे बताने लगी थी कि ये मुब्तदा है, तो आइए आप मुझे बताएं मुब्तदा और खबर भी ढूंढ के दें। उम्मतुन इसकी खबर होगी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा छोटा सा फेलिया जुमला बन गया। लिखूं? इस्मिया मैंने इस्मिया ये इस्मिया इसमिया गन जुमला। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ एहतजाज करें, बताएं मुझे, जगाएं मुझे कि ये इस्मिया है, फेलिया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद है कद। कद को हम इस तरह से समझते आए हैं, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, कद क़ामतिस सला। तो बात हो गई थी कि कद का मतलब है तहकीक, गुजर गई, यकीनी बात। अच्छा जी, अब कद को आप देखिएगा, इसके बाद आपको हमेशा माजी नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि माजी की बात ही होती है ना, जो खत्म, बस हो गई, अब उसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। अब खलत जो है ये मुझे नजर आ रहा है मोन्नस, तो ये मोन्नस क्यों यूज हुआ? ये उम्मत की उम्मत वजह के से लिए। कलेक्टिव नाउन है ना। बिल्कुल, क्योंकि उम्मत हमारे पास मोन्नस है, तो अब इसके लिए फेल भी मोन्नस आ गया। अच्छा जी, खला यानी कि खाली, अब वो उसमें खला एक आ गया, खत्म हो गई वो चीज, ठीक हो गया। अब है इसके बाद लहा, यहाँ पर हमारा ये वाला जुमला कंप्लीट हुआ। सिस्टर वो जो सिस्टर सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। हमने जो जी जी। पहले मीनिंग पढ़ा था खला का, उसमें वो तन्हाई में आता था कि तो हाँ, फैजा खलू तन्हाई, इला ये एक लफ्ज शयातीनिहिम। के, एक लफ्ज के बहुत सारे माना बन जाते हैं ना। तो तन्हा इंसान वही होता है ना, जब कोई और नहीं होता, अकेला होता है, खाली जब होता आप है, देखिए ना, वो आप उतनी समझ सी। ले जगह खाली हो गई, वो एक हाँ कौम जी। गुजर गई, बस पीछे उसके समझे कि तन्हाई रह गई। ओए होए, कहीं मुझे कोई शेर ना याद आ जाए। अच्छा जी,
एक चीज अब आप सब अपने माइक जरा थोड़ी देर के लिए बंद करें, एक बड़ी अहम चीज मैंने आपको बतानी है यहाँ पर, क्योंकि इतनी छोटी सी जो तरकीब है ये मोस्टली QC5 में छोड़ दी जाती है। कल हमने पढ़ा था मा ताबुदूना, किसको याद है ये हमने कल पढ़ा था और इसको क्या बनाया था? माँ इसम। इसम बनाया था, इसम इस्तिफामिया। इस्तेफामिया तो है, वो उसकी पहचान है। हमने इसको जुमले में भी कुछ बनाया था, मफूले भी ही बनाया था। इसको हमने मफूले बिही बनाया था, ठीक है। और एक मैंने साथ एक जी नाम भी लिखा था इसका, कि ये मुकद्दम हो गया है, ठीक है। हाँ, मुकद्दम अब मुकद्दम, जी जी। अब हमारा फेल प्लस फाइल, अब फाइल हमारा क्या हो गया था? मुअख्खर, ठीक है। अब जी इस माह का आपने एक रोल कल देखा, एक अब हम देखेंगे यहाँ पर। लाहा क्या है? लाहा कौन सी जोड़ी है? जार मुतले जारी। मजरूर। जार मजरूर। और माँ क्या है? ये भी इसम लग रहा है अब यहाँ पे। ये भी इसम है, ठीक है। अब इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये एक खबर है जो कि मुकद्दम हो गई है, ठीक है। और ये जो माँ है ये मुबतदा है, ठीक हो गया। क्योंकि ये इसके हमें जेर जबर पेश तो नहीं नजर आनी, लहा को फिट कहाँ करना है? जार मजरूर क्या कि हम छोड़ते हैं इसको, हमने बहुत ज्यादा पढ़ना है QC6 में। आज ये क्योंकि हमारी आयत मुबारका में आ गया तो मैंने इसलिए आपको उसकी थोड़ी सी तरकीब खोल के बता दी है। अभी अगर नहीं भी समझ आएगी ना तो ठीक है, चलेगा, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये याद रख लें कि लहा जार मजरूर है, और जार मजरूर कभी भी मुबतदा नहीं बन सकते। फिर इस सूरत में क्या कर लिया जाता है? इसको खबर बनाकर पहले लाया जाता है। अब इसके बाद अगर एक आपको पेश वाला इसम नजर आ जाए तो वो तो बहुत आसानी से हम पहचान लेंगे कि ये इसम जो है नजर आ रहा है हमें पेश के साथ, तो इसको हम कहाँ फिट करें? पीछे जार मजरूर आ गया तो मोस्टली इसी तरह से इसकी तरकीब कर ली जाती है कि उसे खबर मुकद्दम कर लिया जाता है और इसम को मुबतदा कह लिया जाता है। अब इस मुबतदा के साथ भी हम एक चीज फिट कर दिया करते हैं, नाम, वो है मुबतदा मुअख्खर, यानी कि मुबतदा बाद में आ गया और खबर पहले आ गई, ठीक हो गया। ये तरकीब अगर आपको नहीं भी याद रहती तो अभी इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। इसके बाद है कसबत। अब कसबत ये भी मुअन्नस है, ठीक है। ये अब कौन सा, अब यहाँ पर जुमला, एक और जुमला शुरू हो गया है, इस जुमले को हम क्या कहेंगे? जुमला फेलिया। ये छोटा सा जुमला इस्मिया, और ये पहला भी जुमला इस्मिया था। अब है वाह, ये किस लिए यूज हो रहा है? ये अतफ हो रहा है लकुम। लकुम क्या है? जार लहुम मजरूर। हमारे पास जार मजरूर, ठीक है। इसके बाद एक फिर माँ आ रहा है। अब फिर ये ये माँ कौन सा मुबतदा। माना दे रहा है? ये जो जो वाला माना दे रहा है, ठीक है। अब है कसब तुम। अब ये कसब तुम, पहले मुझे इसमें से फाइल बताएं, फिर उसके बाद इसमें से फाइल बताइएगा। अंतुम। तुम इसमें हिया, तुम तुम कसब, फाइल। कसबत में हिया और जी ठीक कसबतुम है, में अंतुम। अंतुम। और इसको हमने कैसे बताना है? कसबत में हिया, और जब हम कसब तुम बताएंगे ना तो हम कहेंगे कि तुम इसमें फाइल है जो तुम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अंतुम को, ठीक है क्या? अच्छा जी, इसमें हम देख लेते हैं इसके कसबत के सामने, क्योंकि ये हिया वाला था तो इसमें हमें नजर आ सकता था जो हमारा फाइल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कसब तुम में से नजर आ सकता है तो मुझे बताएं, नजर आ सकता है? नहीं, उसके अंदर नहीं। होगा। नहीं नजर आ नहीं। सकता। तो जिस तरह से हमने ये एक छोटी सी तरकीब बनाई है ना, ये ऊपर वाली, ये वाली, इसी तरह से इसकी भी बन सकती है, ठीक है। अब इसमें हम मजीद आगे डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल ये उसी की तरह की तरकीब हम यहाँ कर सकते हैं। अब आगे फिर एक छोटा सा फेलिया जुमला आ गया।
यानी कि छोटे छोटे इसमिया जुमले, फेलिया जुमले, जोड़ियां, इन सब को मिलाकर एक पूरी बात, मुकम्मल बात हमारे सामने आती है, जिसका पूरा पूरा एक माना भी होगा और मुकम्मल उसके अंदर मफहूम पाया जाएगा। ठीक हो गया। अब ये इसका भी मफूल नहीं है और इसके पास भी मफूल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो उसने कमाया, कमाना तो समझ आती है ना कि कमाना, कमाई करना। अब उस कमाई में वो रिज़्क वाली कमाई भी हो सकती है, अमाल भी कमाई, वो उसमें ये भी आ जाता है। तो इसके आगे मफूले बिही की जरूरत नहीं थी, नहीं आया। लेकिन कुछ अफाल ऐसे होते हैं जैसे कि काना था, या फिर काना जैसे मजीद, काना को तो हम इसम वगैरह बना लेते हैं। इसी तरह से कुछ अफाल भी हैं जो खुद पूरा माना नहीं देते, या पूरा माना देकर भी मफऊल की जरूरत उन्हें पड़ जाती है। जैसे हम कहें कि जाला सा वो बैठा, कहाँ बैठा, किसी तरह से समझ आ जाएगी, अच्छा कहीं ना कहीं बैठा, मफूल आ गया है तो वो कोई कुर्सी वगैरह हम ले आएंगे इसके साथ। वो गया, कहाँ गया, कहीं ना कहीं हमें फिर उसको भेजना पड़ेगा। तो ये चीजें खैर इंशाल्लाह हम साथ साथ सीखते जाएंगे, लेकिन ये छोटी छोटी जो तरकीबें ना, इनको अपनी बुक पे लिख लिया करेंगे। जब आपको QC6 में जाके ये वाले कॉन्सेप्ट सामने आएंगे ना, तो आपको वो एकदम से ज्यादा सारा बर्डन नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पर आपने, जैसे रिवीजन में हम क्या करवाएंगे, रिवीजन में हम सिर्फ आपको वो वाली चीजें करवाएंगे जिसका आपने क्विज देना है। ठीक है, ताकि आपका वो वाला जितना भी हम इसमें ग्रामर का पार्ट पढ़ रहे हैं, वो आपको पूरा पूरा अच्छी तरह से अजबर हो जाए, कि उसकी आपको इंशाल्लाह QC6 में कोई मुश्किल ना हो। इसके बाद है वाला तुस आलूना। तुस आलूना के बारे में मुझे कौन बताना चाहेगा? मजहूल। ये मजहूल है सिस्टर। ये मजहूल है, ठीक हो गया। मुदारे का मजहूल है, और जमा हाजिर। जमा जमा है, हाजिर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और पहचाना कैसे हमने? ये पेश ने बताया, और ये जो एक जबर थी। ठीक हो गया, वाला तुस आलूना। अब ला जो है मुदारे की नफी हम करते हैं ला से, इसमें अब और कोई साइंस नहीं है। ठीक है, ये जो हमने शुरू से सीखा हुआ है, माजी की नफी मुदारे से, सॉरी मुदारे से कर दी मैंने, माँ से। और मुदारे की नफी जो होगी वो हम करते हैं ला से। एक ला हम और भी पढ़ते हैं ना, जो हम कहते हैं जिसमें हम नहीं वाला माना लाते हैं, किसी को बुराई से रोकना, नहीं। ठीक है, अब वो वाले लाइनाहिया। लाइन नाहिया, उसको नहीं से याद कर ले, क्योंकि वो फेले जी नहीं होता है ना, तो उसको जी। लाए नाहिया से याद कर ले। और ये जो इसको नफी है, तो नाफिया से याद कर ले। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये नफी कर रहा है। और इसमें नहीं यानी कि किसी भी चीज की मनाही है। ठीक है, छोटे छोटे लफ्ज इनको साथ साथ जोड़ जोड़ के इनके लिए अपने नाम याद रखने के लिए अपने लिए खुद बना लिया करें कि ये इसके मिलता जुलता लफ्ज है, इसका मतलब है कि ये इसका जो नाम है ये यहाँ फिट हो जाएगा। अच्छा जी, जब हमने इसको बना लिया मुदारे मजहूल, तो अब मुझे इसका फाइल चाहिए या कुछ और चाहिए? इसके अंदर नाइबुल फाइल मौजूद है। इसके लिए हमें चाहिए नाइबुल फाइल, और इसका नाइबुल फाइल क्या होगा? अंतुम। अंतुम। अंतुम है। और अगर आपने यहाँ इसको देखकर बताना हो ना फाइल क्या है, तो हम कहेंगे वाओ। ठीक है, सिर्फ वाओ कहेंगे, क्योंकि नून जो है यही इसके पीछे अगर कोई आ जाता लम या फिर अलम हत्ता वगैरह, तो इसमें गिर जाना था, फिर हमें नून नजर नहीं आना था, फिर हम कैसे कह सकते थे कि वाओ नून जो है ये इसकी पहचान बनेगी। तो हमें तुस आलूना से पता चल गया ये ज्यादा लोग हैं सामने जिनके बारे में बात की जा रही है, मजहूल का भी अंदाजा हो गया, और हमें नाइबुल फाइल भी मिल गया। आगे हमारे पास है अम्मा, अन प्लस मा, जार मजरूर। ये जार मजरूर हो गया, सिंपल। अब यहाँ पर इस जार मजरूर को हम जार मजरूर कह के छोड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें कौन सा कोई इसम ऐसा नजर आ रहा था जिसको हमें इसका मुब्तदा वगैरह बनाना पड़ता। ठीक हो गया, आगे है कानून। अच्छा जी, अगर आप लोग कहें तो ये मैं जो लिखा इसको रेज कर दूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लें, फिर हम इसको रेज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं तरकीब इसकी, कानू या अमालूना।
पहले सिर्फ मुझे आप ये बता दें। अच्छा जी, ये किसका माइक तंग कर रहा है उसको जरा कर लें, म्यूट कर लिया करें। जब आंसर करना है ना उस टाइम फिर आप सिर्फ खोल लें, बोल लें और बंद कर दें। कानू क्या है? इस्म है, फेल है, हर्फ है, क्या है ये? नाकिस फेल। फेल नाकिस और माजी है, मुदारे है, अमर है, नहीं है? माजी गायब जमा। माजी है। अच्छा जी, अब नाकिस फेल है और ये जमा का सीगा हो गया, ठीक है। अब हम क्योंकि काना वाले जो होते जितने भी हमें जुमले नजर आते तो हम वहां पर फाइल की बजाय क्या बना लेते हैं? इसम। इस्मु काना। ठीक हो गया। जहां पर नाकिस के तौर पे काना काम करेगा वहां हम इसका बनाएंगे इस्म। और कहीं कहीं जैसे हमें कुन फाया कून में नजर आया था कि वहां पर ये ताम होके यानी कि मुकम्मल माना दे रहा था, वहां पर हम इसका फाइल वगैरह बनाते, ठीक है। वहां पर हम इस्म नहीं बनाते। तो इस्मु काना क्या मिला हमें? क्या हमें कानू के बाद कोई ऐसा इस्म नजर आ सकता है कि जिसको हम बनाएं? होम हुम होगा। नजर आ क्योंकि सकता है। सिर्फ हुआ और हिया, ठीक है, हुआ और हिया का फाइल जाहिर हो सकता है। हुम इसी तरह से जो हमारे पास होगा, का, ये, कुम, ना, किसी का भी हमारे पास फाइल जाहिर होकर नहीं आएगा बल्कि उसके अंदर ही छुपा हुआ होगा। अब कानू के अंदर है हुम और यामालूना के बारे में अब जरा बताइए। सबसे पहले आपने इसी तरह से बताना है, फेल है, इस्म है, हर्फ है, ये क्या है? फेल मुदारे जमा फेल मुदारे जमा, हाँ फेल है, जमा मुदारे है, और गायब गायब है मुज़क्कर और गायब। मुज़क्कर है, गायब है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको आप पहचान कैसे सकते हैं, तो ये जो हो रहा है ना नून, कहीं कहीं हम नून को कहते हैं नून हज़फ हो गया, गिर गया, और यहाँ पर ये पूरा है, इसको हम कहते हैं बी सबूते नून। ताकि जब आपके पास ऐसा कोई किसी ग्रामर की बुक में कहीं नजर आ जाए तो 20 सबूती नून को देख के आप घबरा ना जाए कि ये क्या लफ्ज, इसको साबित से याद रख लें। साबित नून खवातीन है, साबित गरम मसाला, साबित मसर, उसे याद रख लें, ठीक है। ये साबित है, यहाँ पर नून साबित हो रहा है, पूरा है, नजर आ रहा है। यही अगर इसके पीछे कोई ऐसा अमल हो जाता जिससे ये नून गिर जाता, लम वगैरह आ जाता, तो फिर ये हो जाना था बी हज़फे नून। ठीक हो गया। ये थोड़ी 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 अरबी हम इसी तरह से साथ सीखते जाएंगे। अब अगर हमने ये वाले दो जुमले अलग अलग बना लिए, अब इसको आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करना है? इसमु काना हुम हो गया। अब इस जुमला फेलिया को हम क्या कर लेंगे? ये है हबरुकाना। अबरू काना इसको खबरू काना बना लेंगे। एक चीज हमने काना वाले टेबल की सीखी थी QC2 में, उस हिसाब से देखें कानू या मालूना क्या बन जाएगा? माजी माजी इस्तमरारी। इस्तमरारी हाजी इस्तमरारी। ठीक हो गया। जार मजरूर के साथ हमारा QC1, तिलका के साथ QC1, ये हमारे साथ साथ रिपीट होते जाते हैं ना। खलत वगैरह जब हम देखते हैं, खला तला, इस तरह के टेबल QC2, माजी इस्तमरारी QC2 आ जाता है। फिर जब हमें कोई नजर आ जाता है ऐसा फेल मजीद ही का, हमारा QC3 रिपीट होता है। मजहूल QC4 में आ जाता है। अब ये सारी चीजें सीखते देखते इंशाल्लाह हमने आगे बढ़ना है। अच्छा, आज के लेसन में हमें कोई मफूले बिही नजर नहीं आया, कोई मफूले लहू या कुछ भी, कोई कोई मफूल नजर नहीं आया ना, मुतलक भी नहीं है। तो आज की इन आयात में जो हमने पढ़ा है उसमें से सिर्फ एक चीज आ गई कि काना वाला जुमला नहीं, इस्मिया जुमला भी हमने QC5 में पढ़ा है और फेलिया जुमला भी। ठीक हो गया। जोड़ियां थोड़ी थोड़ी सी हमें मिल गई, लेकिन हमें क्या नहीं मिले? हमें मफूलात नहीं मिले। चले इंशाल्लाह वो जब अगली आयात करेंगे तो उनमें हम फिर साथ साथ उन्हें भी ढूंढना शुरू कर देंगे। सिस्टर वैसे काना का जो खबर होती है वो तो नसब की हालत में होती है। ये आपने एडवांस लेवल का सवाल पूछा है, लेकिन मैं चूंकि थोड़े थोड़े से जवाब आपको दे देती होती हूँ ताकि आपका शौक बढ़े, ठीक है। आपको शौक ना लगे बल्कि आपका शौक व ज़ौक बढ़े। इसको हम फिर कहा करते हैं
کہ یعملون، چونکہ یہ اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ حالت میں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ رفع کی حالت میں ہے، لیکن جب اس طرح سے ہم نے بنانا ہو تو پھر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں فی محل نصب، یعنی کہ یہ دیکھنے میں تو مرفوع ہے لیکن اس کا جو مقام ہے، اس کا جو محل ہے، اس کی، یا اس کو محل سے نا، محل سے بھی یاد رکھ لے، محل رہنے کی جگہ ہوتی ہے نا، تو اس کو جو ٹائٹل مل گیا، جو اس کا اس جملے میں رول تھا، اسے ہم کہیں گے کہ فی محل نصب، یا ہم ایک اور اس کی ٹرم لے لیتے ہیں محلن منصوب۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب ہم یہ پورا لکھتے ہیں نا، پوری پوری ترکیبیں جب لکھنے لگ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خبرو کانا، چونکہ نظر آ رہا ہے یہ فعل یا جملہ ہے، اور فعل یا جملہ بھی ایسا جس پہ کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں فی محل نصب، اور یہ اس کے ساتھ لکھ دیا کہ یہ یعملون ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ سسٹر کا یہ محل، موقع محل والا بھی نہیں اس سے یاد رہ سکتا؟ موقع محل، میں نے تو کہا آپ اس کو محل کی طرح یاد رکھ لیں کہ یہ اپنے محل میں جا کے رہنا چاہتا ہے اس کو، کیونکہ یہ جو کانا کی خبر تھی، یہ چاہتا ہے کہ میرا جو گھر ہے وہ محل جو ہے فلیٹ فلیٹ سا بنا ہوا ہو نا، سیدھا سیدھا سا، جس میں اثر پڑا ہوا ہو، تو یہ منسوب ہو جائے گا۔ اب یہاں پر پتہ کیا ہوتا ہے، صرف کا جب پوائنٹ آف ویو شروع ہوتا ہے نا، اس میں ایک ایک لفظ کے لیے کافی ساری چیزیں آ جاتی، بہت ساری نحو گرامر اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے، تو اسی لیے ہم اس کو آہستہ 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 لے کے جاتے ہیں، تاکہ پہلے جو ہم کانسیپٹس پڑھ رہے ہیں اس میں آپ اس کو ابھی اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ کانا جو ہے وہ ایک اسم، ایک خبر مانگتا ہے، تو کانو کے اندر اس کا اسم چھپا ہوا ہے، آگے ایک جملہ فعلیہ آ گیا، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر مضاف مضاف الیہ کی جوڑی بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح سے یہاں پر کوئی جار مجرور بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کو ہم پھر اسی طرح سے کہا کریں گے یہ فی محل نصب ہے، آگے وہ جو بھی اپنی اس کا رول مقام ہوگا اس کو ہم اس طرح سے تو لیں گے ہی۔ اب جیسے ماضی استمراری کو ہم نے ڈھونڈا، یہ صرف کا پہلو تھا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آگے بڑھتے جاتے ہیں ہم انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کسی میں سیکھیں گے، لیکن چونکہ آپ کو تھوڑا 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 آئیڈیا ہوتا جا رہا ہے نا، اب آپ کو QC6 میں انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ اس بات پر فخر مت جتایا کرو کہ تمہارے آباء و اجداد نبی تھے، قیامت کے دن تم سے تمہارے آباء و اجداد کے عظیم کارناموں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور نہ ہی تم کو ان کے اعمال میں سے کچھ ملے گا۔ اس کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جیسے اب جو اسلام لے کر آئے تھے جتنے بھی تھے صحابی تھے، صحابیات، اب ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تو تھے نا کہ جن کے جو آباء و اجداد جس ٹائم میں یہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، دین کی طرف نہیں آئے تھے، تو اب ان کے جو کارنامے یا ان کے جو کام ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تو پھر اسی طرح سے دوسروں کے اچھے کاموں کا بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی برائی کا کسی سے کوئی سوال نہیں ہوگا تو اسی طرح سے کسی کے اچھے اعمال میں سے بھی کسی کو کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ تمہارا فیصلہ صرف اور صرف تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ ہم کہیں کہ ہم تو جی امت ہیں، کون سی امت ہے؟ آخری نبی کی امت ہے۔ ہم نے تو وہ ساری جو جتنے بھی ایمان کامل وغیرہ جو مجمل اور مفصل جو بھی تھے، وہ ہم نے پورے کے پورے ہر ایک پر پوری طرح سے ایمان لے آئے ہیں، تو اب تو ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہم جس کو کہتے ہیں نا بخشے بخشائے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ناطے ہم نے بخشے ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ اپنے لیے خود تیاری کرو آخرت کی، کہ میں اس دن تمہارے لیے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوں، تمہارا فیصلہ صرف اور صرف تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ ہم جنت پہ صرف اس وجہ سے نہیں جا سکتے کہ ہم ایک نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پچھلی نسلوں سے اور اپنے آباء و اجداد سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ اچھے رول ماڈل کی پیروی کرو اور برے رول ماڈل سے دور رہو۔ اس کا ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی تو پڑھا ہے نا کہ ہم دعا بھی یہی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی نسبت عطا فرمائے اور جو برے لوگ ہیں برائی سے ہمیں بچا دے۔ اگر ہم وہی کریں گے جو انبیاء اور اچھے لوگوں نے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں
इनामात से नवाजेगा इंशाअल्लाह। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा, जिसको हमने देख लिया था। अच्छा जी, इस्लाम का कानून बहुत ही साफ और वाज़ेह है कि आपको वही नतीजा मिलेगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। पहले के लोगों ने जो गुनाह किए इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, यानी कि वो एक उम्मत थी गुजर गई, जो उन्होंने किया उनके आमाल उनके साथ। इसी तरह पिछले लोगों ने जो अच्छे काम किए, नेक काम किए, उनके अजर सवाब में से भी आपका कोई हिस्सा नहीं रहेगा। अपने अकीदा और अपने आमाल की बुनियाद पर आपका आमाल नामा आप खुद तैयार कर रहे हैं। इस्लाम में नस्ल परस्ती, इलाकायत, कौमियत या खानदान की वजह से किसी को बड़ा समझना या किसी को घटिया समझने का कोई तस्वुर नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई बहुत मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही इस्लामी घराने से, दीनी, जिनके हर तरह से पूरी तरह से जैसे अमल किया जाता हो, तो उसमें भी फिर जो आगे औलाद है, जब तक वो भी इन चीजों को फॉलो नहीं करेगी, तो तब तक वो भी अगर ये समझे कि हम इस तरह से, कि हमारा ताल्लुक तो एक बहुत ही नेक और बड़े ही अच्छे मुअज़्ज़ज़ घराने से, तो हम उस वजह से बख्श दिए जाएंगे या हम उस वजह से हमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, तो ऐसा तसव्वुर गलत है। किसी भी जात, रंग, नस्ल, कौमियत, ग्रोह या किसी खास जुबान बोलने वालों के लिए कोई तरजीह, कोई इम्तियाज हासिल नहीं। अल्लाह ही ने इंसानों को अलग अलग रंगों या मुख्तलिफ नस्लों या मुख्तलिफ जबानों के साथ पैदा फरमाया है। इंसान ने अपनी मर्जी से इनमें से किसी चीज को इख्तियार नहीं किया। किसी का भी रंग, किसी की जुबान, जो जहां पैदा हुआ है, डेफिनेटली वो उसी तरह से बोलेगा। जैसे हम अरबी उस तरह से नहीं बोल सकते जैसे अरब का बच्चा बच्चा बोलता है, लेकिन वहां के लोग हमारी तरह से, हम जुबानें बोलते हैं, चाहे वो हमारी मादरी जुबान हो, कौमी जुबान हो, इस तरह से नहीं बोल सकते ना। इस्लाम का निजाम इंसाफ पर कायम है, जो जैसा करेगा वैसा ही उसको बदला मिलेगा। एक हदीस में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान को उसका अमल पीछे कर दे, तो उसका खानदान, नस्ब उसे आगे नहीं कर सकता। इतनी बेबसी होगी। जब हम इन सारी बातों को सोचें, इन सारी बातों पे थोड़ा गौर करें, तो तब, जब वैसे ही कहते हैं, जब कयामत के बारे में
آخرت کے بارے میں یقین ہوگا تو انشاءاللہ انسان بہترین اعمال ہی کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمومی طور پر سب کو ڈرایا، پھر مخصوص کرتے ہوئے خاص ایک ایک کا نام لے کے، اے کعب بن لوئی کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے مرہ بن کعبہ کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے عبد شمس کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے ہاشم کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے عبد المطلب کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے کچھ اختیار نہیں رکھتا، یعنی میں نہیں بچا سکتا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ تمہاری مجھ سے جو رشتہ داری ہے میں اس کو جوڑتا رہوں گا، یعنی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا۔ اب آپ اپنی بک میں دیکھیے، یہاں پر یہ ساری عربی میں بھی لکھی ہوئی ہے نا، اب آپ اس کو یا بنی دیکھیے گا کہ یا آ گیا تو اب یہ بنو کی بجائے بنی آ گیا، یعنی کہ اب یہ یہاں پر آنا تو ویسے یا کے ساتھ ہم پیش لگاتے نا تو بنون آنا چاہیے تھا، اب وہ بنی آیا، یعنی کہ اس کے آگے پھر ایک مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ نے کیا کیا، اب تھوڑا سا اثر ڈال دیا کہ نون بھی گرا دیا اور اس کو نصب کی حالت میں بھی لے آیا۔ یہ انشاءاللہ ہمارے یہ والے منصوبات جو مفعول وغیرہ ختم ہوں گے تو اس کے بعد ہمارا یہ منادہ والا بھی چیپٹر آ جائے گا انشاءاللہ، اس میں پھر اور بھی اچھے طریقے سے ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اچھا جی، یہ ہم نے دیکھ لیے تھے اسباق وغیرہ۔ اے اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے میں ہماری مدد فرما، اور ہمارا پلان کیا ہونا چاہیے، ان آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں انبیاء کرام کی تاریخ پڑھوں گی اور اس سے سبق حاصل کروں گی انشاءاللہ۔ امتن امامن، ان کو اسی طرح سے یاد کر لیا کریں کہ جو نئے نئے یا کسی کے ساتھ نام ملتے جلتے ہوں واحد جمع، تو اس کو ایک علیحدہ سے آپ یاد رکھ لیا کریں کہ یہ بھی ایک جمع ہے۔ کسبہ یکسبو، اکسب کاسب مکسوب اور کسب، اور اگر یہ ہوتا باب ہا پر تو اس میں یہ ہو جانا تھا کاسیبہ، تو یہ تھوڑا تھوڑا سا ہم نے یاد رکھنا کہ ایک باب کاف نیا تھا اور ایک باب ہا نیا تھا۔ باب ہا جو ہے وہ پہلا والا جو اس کا ماضی والے سیغے ہوں گے وہ باب سامیہ جیسے ہوں گے، باقی وہ سارا ٹیبل اس کی طرح بن جاتا ہے جیسے ہمارا باب دود والا بنتا ہے۔ اس کے بعد عاملہ یعمل، اعمل عامل معمول اور عمل، اور یہ ہم نے QC 1 سے شروع کیا تھا۔ خلا یخلو اخلو خال مخلوب عنہ، اس کے بعد خلوب، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مخلوب کے ساتھ عنہ آیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ویسے تو نہ بھی یوز ہو لیکن اگر کہیں یوز کرنا پڑ جائے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریپوزیشن آ جائے گی۔ یہاں پر ہمارا جو معنی بنا ہے وہ ہے گزرنا والا، سألا یسألو سل، اور اگر اس کا ہم ایک اور جو یاد رکھتے ہیں فعل امر اسأل، وہ کب آئے گا جب اس کے پیچھے کوئی ایک واو یا فا کوئی حرف جوڑنا ہو۔ اس کے بعد ہے سائل، ہم سائل کہتے ہیں نا، سائل مانگنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو، مسئول اور سؤالن، سؤالن اور اسی طرح سؤالن، تینوں طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ کانا یکون، کن کائن کون، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ چلیں اب ہم ایسا کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اب ہم پورے 15 منٹ بعد 5:30 پر آ کر اپنا گرامر والا پارٹ شروع کر لیں گے۔ چلیے جی ہم یہاں پر کر لیتے ہیں بریک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، سسٹر اب آپ کو مزے مزے کی چیزیں سکھا رہی تھیں تو میرے خیال سے پہن سے اگر بتاتی تو آپ کو اور زیادہ پتہ چل جاتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بھی یہ ساری چیزیں بتا دیں گے، اور آپ ریویژن کی کلاس اب آپ نے بالکل نہیں چھوڑنی،
अब आप उसको रवैया ना कहा करें, अब आप उसको ट्यूशन कहा करें। चलिए जी, आज हमने क्या पढ़ना है? ग्रामर की 3 हालतें हम पढ़ चुके हैं, अब ये मजीद 3 हालतें हैं, लेकिन मजीद आपने सुन के इसको मजीद फीही की तरह नहीं समझ लेना। मजीद यानी कि जो पहले हम पढ़ चुके उसमें अब ये प्लस होने जा रही है। 3 पहले पढ़ ली, 3 हमने कल पढ़ी थी, 3 आज पढ़ेंगे। यानी कि इसमें हमने जो पढ़ी थी, कौन बताना चाहेगा मंसूब हालतें किसी भी इसम की? मफऊल बिही, मफूले बिही पढ़ा हुआ था, ठीक मफऊल है, मुतलक मफूले मुतलक और मफऊल लहू या फिर ली अजलिही। लहू या फिर ली अजलिही। ये तो हमने कल पढ़ा ना, इससे पहले भी तो हम नसब की 3 हालतें पढ़ते आए हैं ना। अच्छा वो मफूल वाली, वो बिही, हमने इन्ना का इन्ना इसमें का इतना इसम, खबरू काना काना की खबर खबरू काना, और मफूल का फेलिया जुमले का मफूल। मफूल, ठीक है। 6 हम पढ़ चुके, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे तो ये मजीद 3 हो जाएंगी, यानी कि अब कुल मिला के इंशाल्लाह हम 9 नसब की हालतें कवर कर लेंगे। फिर इसके पीछे रह जाएंगी कोई 3 या 4, तो ये मिला मिलू के हमने कोई 12-13 इस तरह की हालतें पढ़नी है। क्योंकि जब आप देखें कि किसी भी आयत मुबारका में आपको नसब की हालत में कोई नजर आ रहा है ना, कोई भी इसम हो, तो आपने उसकी वजह जरूर ढूंढनी, कोई ना कोई वजह जरूर होगी जिस वजह से एक डिफॉल्ट हालत इनके रफा की हालत से आपका इसम नसब में चला गया। सिस्टर हाजी, आपका हैंड रेज है, ये आपका कोई क्वेश्चन है या फिर ये आपने जी, पहले? मैं कहने लगी थी कि ये फेल या जुमले का जो मफूल हमने पढ़ा था वो मफूल बिही ही था ना, जिसको हम मोस्टली मफूले बिही ही आइडेंटिफाई था, करते थे। लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन उसको हम सिर्फ कहते थे जुमला जुमला फिलिया का मफूल। ये तो फिर आगे हम मजीद चीजें सीखने लग गए ना, मफूले हम्म, बिही का, मफूले मुतलक सीखा, मफूले लहू सीखा, और आज इंशाल्लाह हम मजीद 3 सीख लेंगे। सिस्टर इसमें एक बात तो वो कहूँ, तब जी जैसे आप कहते हैं कि किसी न किसी वजह से ही ये नसब होता है, तो अगर जो जुमले हमें दिए जाते हैं उनमें अगर कोई वही सेंटेंस अगर पीछे एडजस्ट कर दिया जाए, उसके साथ प्रैक्टिस हो तो वो ज्यादा नहीं इजी हो जाएगा कि इस वजह से ये अभी नसब आए, की। अभी अभी कुछ हम पढ़ भी ले रहे हैं ना, ये जो आ जाती मिसालें, ये हमारा कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम आपको मजीद कुछ मिसालें देंगे इंशाल्लाह। जो मिसालें, जी जैसे मैंने कल मफूले मुतलक की कुछ मिसालें डाली थी ना उसमें ग्रुप में, इसी तरह से जो मिसालें नजर आती जाएंगी आपको मिले, आप डालें, हमें कोई नजर आती है तो हम उसमें डाली जाएंगी। इससे फायदा ये होता है कि जरा अच्छी समझ आ जाएगी। आप सिस्टर नौरीन है? जी जी हाँ जी, आपका भी एक क्वेश्चन था, वो जरा लिखवाइए मुझे। जी उसमें था, एक मिनट। इन्ना से शुरू है, हाँ जी, इन्ना इन्ना रब्बी, हाँ जी, और इसके आगे रहीमु वदूदुन, रहीमु वदूदुन, रहीम की तन्वीन वदूदुन, इन्ना रबी रहीम। रहीमुन और वदूदुन, जी ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा जो ख्याल है ना, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है रब्बी पे। जी अच्छा जी, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये अल्फाज क्या क्या है। ये है हर्फ, जो क्या करता है, हमने कहा था मुशब्बा बिल फेल है। ये अभी इतना मुश्किल लफ्ज नहीं भी याद होता छोड़े, आप कहें कि ये एक हर्फ है जो ताकीद के लिए आता है, अरबी में उसे ही तौकीद कह देते हैं। और ये क्या करता है, ये नसब की हालत में ले जाता है अपने इस्म को, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये जो एक छोटा सा मुरक्कब नजर आ रहा है, देखने में तो एक लफ्ज लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये है रब प्लस या, ठीक हो गया। जी अब क्योंकि हमने इन अस्मा को इन वाले हुरूफ के साथ कनेक्ट करना है, अब ये मुदाफ मुदाफिल है तो बन गया, ठीक है। जी अब ये जो रब है, रब के ऊपर इन्ना के इस्म होने की वजह से जबर आनी चाहिए।
जी ऐसा ही है ना? जी अच्छा जी, अब ये रब्बा प्लस जी, अब इसको पढ़ना मुश्किल, लिखना मुश्किल, समझना मुश्किल। तो रब्बी यानी कि कौलामी दीनी जितना भी मुदाफिल आप अपनी तरफ का बनाएंगे, इसको हम कहा करते हैं ये मबनी हो जाता, बस ये बना बनाया बन गया। अब इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं। इसमें क्या है कि ये जो जबर हो चाहे पेश हो, इसने जेर ले लेनी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये जो हमें या नजर आ रही है ना, ये कह रही कि मुझसे पहले जेर हो ताकि मुझे पढ़ना आसान हो जाए। अब असल में हम इसको क्या कहेंगे कि इस्मु इन्ना रब्बा है। ठीक है, अब यहाँ तक रुक के रब्बी है मुदाफ मुदाफिले, तो ये जो थोड़ी सी एक तब्दीली आई है वो ये है कि ये जो जबर है ये अब इस जेर ने इसको खा लिया है। ठीक है, और ये हर जगह पे होगा जहां पे हम अपनी तरफ वाला बनाएंगे। तो इसलिए जो मुदाफ मुदाफिले में सिर्फ ये जो याए मुतकल्लम अपनी तरफ वाला जो इशारा होगा, उसमें हम कहेंगे कि ये इसने अपने पीछे जेर ही लेनी है। अब यहाँ तक हमें समझ आ गई इस्मु इन्ना की, हमें एक मुरक्कब भी मिल गया। अब हम आ जाते हैं इसकी खबर पर। ये इसकी खबर आ गई। अब रहीमुन भी अल्लाह ताला की एक सिफत है, और वदूद भी। तो हम इसको सिफा और मौसूफ नहीं कह सकते। उस सूरत में फिर हम क्या करते हैं? खबर 1 खबर 2। खबर 1 खबर 2। ठीक हो गया? जी अब इस आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। में जज्म की वजह से था कि इसके ऊपर या के ऊपर जज्म है, तो फिर उसको लिखे, उसको फिर भी लिखना जरूरी है। ऐसी है जो जज्म ऐसी आई हुई थी, जी इसको कहते हैं रस्मुल खत। ओके। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इससे ये लिखने वाले जो खास तौर पे पाकिस्तानी लिखने वाले हैं ना अरबी को, वो लिखते हैं। हमारे पास भी जो कुरान पाक हम घरों में पढ़ते हैं उसके ऊपर इसी तरह से सारे साकिन, जहां पर नहीं भी जरूरत होती, सिर्फ हमें ये बताने के लिए कि हम गलती ना कर जाएं। जरूरत नहीं होने से मतलब है कि जहां पर मर्ज होना ना वहां भी साकिन का निशान दिया जाता है। लेकिन ये जब हम अरबी मुसहफ में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जहाँ पे इख्फा आ जाए, गुन्ना आ जाए, कोई भी कोई कायदा लग जाए, वहां पर पीछे ये साकिन का निशान वो डालते नहीं। सिर्फ निशान वहां डाला जाएगा जहां पे अन का या मिन का इनका इजहार होना हो हर्फ का, जहां पे नून ने सिर्फ और सिर्फ पूरी अपनी हरकत और अपनी सिफात के साथ पढ़ा जाना हो। ठीक है, तो इन छोटी छोटी ये जो चीजें ना, इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह से पूछ लिया सिस्टर करें, ये इंशाल्लाह हम खोल देंगे। रहीमुन वदूदुन ये क्यों नहीं सिफा की जोड़ी बन रही, चाहे दोनों मुजक्कर भी हैं, दोनों में तनवीन भी है? एक को मौसूफ होना जरूरी है जिसकी सिफत बयान की जा सके। ठीक है, अब अच्छा जैसे मैं मैम। कहती हूँ कलमुन जदीदुन, एक कलम मेरे पास है, उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि नया कलम। ठीक है, अब वदूदुन रहीमुन दोनों अल्लाह ताला की सिफात ही है ना। अब हम ये तो नहीं कह रहे कि ऐसा वदूद जो रहीम है। जी जी शुक्रिया, हाँ जी वो जेन में आ गया। हाँ जी, जी एक का यानी कि उस यानी कोई ऐसी एक किस्म हो जिसकी हम सिर्फ बयान कर सकें। ठीक। सिफत बयान कर सके, एक मौसूफ होना जरूरी है। किसी और सिस्टर का कोई क्वेश्चन तो नहीं, हम आगे बढ़ जाएं? जी मैम, मेरे से मुझसे मिस हो गया। आपने ये बताया कि इन्ना का इसम जो है वो मुरक्कब भी हो सकता है। मुरक्कब का जो पहला वाला होगा, जैसे दो पार्ट होते हैं ना, अगर हम रब्बी को कहेंगे ना, पूरा रब्बी को कहते हैं, उस सूरत में तो फिर हम मजरूर को कह देते हैं ना, तो वो तो मुदाफ मुदाफिल वाली तरकीब में आ जाएगा। जो रब्बा है, अब इसको हम इस तरह से जब हम इसकी तरकीब किया करेंगे तो हम लिखा करेंगे कि इस्मु इन्ना रब, फिर आगे लिखेंगे मुदाफ मुदाफिले की जोड़ी, यानी कि मुरक्कब इजाफी है रब्बी। तकरीबन आप समझ जी लें कि ठीक हो गया। आपको आधा क्यूसी सिक्स हमने थोड़ा 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 करके समझा दिया है। इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो आपने वहां सीखनी है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी सीखते जाएंगे ना, वहां पहुंचते तक आपको इन सारी चीजों पर दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, हम थोड़ा थोड़ा भूल भी जाते हैं, फिर वो जब दोबारा से क्लास में कोई बात हुआ करेगी तो आप फौरन से सोचा करेंगे। QC5 की बुक आप अपने साथ रखा करेंगे और लिखा करें इस पर, जो भी आप देखें कि चीज में यहाँ पर लिखूं आपके लिए कोई तरकीब लिखूं, उसको लिख लिया करें आप।
अच्छा जी, हम हर बार देखते हैं कि अरबी ग्रामर में दो हिस्से, एक सर्फ है एक नहव है। याद रखने के लिए हर्फ सर्फ इस तरह याद रख लिया करें, फिर दूसरा खुद ब खुद याद हो जाता है कि नहव में क्या है, इसमें जुमले वगैरह बनाने हैं। हरफों का जो खेल है उसको सर्फ कहेंगे, और उसके बाद अल्फाज बन गए हमारे पास। अब उन अल्फाज का हेर फेर, उनकी एंडिंग, उनके मारिफा निकरा होना, ये सारी चीजें आ जाती हैं नहव में। उससे हमें फिर अंदाजा हो जाता है कि कौन क्या किसे कह रहा है। इस स्लाइड को इस तरह से आप अपने लिए रेफरेंस फ्रेज बना लें कि इसमिया जुमला अल्लाहु गफूरुन, यानी कि हमारे पास दोनों चीजें जो हैं मुबतदा और खबर रफा की हालत में है। और इसमिया जुमले में मुबतदा आपके पास मारिफा होगा, खबर भी मारिफा हो सकती है कभी कभी, जैसे हम कहते हैं ना खिड़की खुली रखें, उसके बारे में भी इंशाल्लाह हमने किसी सिक्स में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना है। इसके बाद हमारे इन्ना वाले जुमले, काना वाले जुमले, ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट होते हैं। अगर इन्ना का इसम मंसूब है तो काना की खबर मंसूब है। अगर इन्ना की खबर मरफू है तो काना का इसम मरफू है। और जो फेलिया जुमला, उसको आप काना वाले जुमले के साथ इस तरह देख सकते हैं कि काना भी है तो एक फेल। अब फेलिया जुमले में जो हमारे पास फाइल है वो काना की इसम की तरह रफा की हालत में आएगा। और जो इसका मफूल है, फेलिया जुमले का मफूल, यहाँ पर हम मफूले भी क्यों नहीं कह रहे, जो भी मफूल होगा, जितने भी मफूल होंगे वो सारे के सारे नसब की हालत में होंगे। चार जोड़ियां हमने पढ़ी, अब हमें पता चलने लग गया कि फिल अर्दी जैसे एक जार मजरूर की जोड़ी है, ये किस तरह से आ जाती है हमारे जुमलों में। अब जैसे सिफा की जोड़ी में हमारी खबर बन जाए बैतुन। अब बैतुन इन्ना वाला जुमला चल रहा हो और बैतुन खबर बन जाए। अब ये खबर बना के हम बैतुन कबीरुन को खबर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बैतुन खबर है, कबीरुन उसकी सिफा है। इसी तरह जालिका खबर है और अलबैतु क्या है, ये मशारुन इलैहि, उसको बदल कह दिया जाता है आसान लफ्जों में। इसी तरह से बैतुल्लाही, तो यहाँ पर अगर हम बैत को हम किसी का काना का बना दें, इसम बना दें, या फिर खबर बना दें, इसकी इन्ना की खबर बना दें। अगर मैंने ऊपर उल्टा बोल दिया तो उसको खुद सीधा कर ले कि इन्ना की अगर खबर बनाते हैं तो खबर सिर्फ बैतु होगी। अल्लाह ही क्या है, अब ये जो इस्मु जलाला है ये यहाँ पर मुदाफ इलैहि है। अब एक बैत था, वो काना का बन सकता है, इसम भी बन सकता है और उसके साथ साथ प्लस मुदाफ भी बन सकता है। तो ऐसी एक एक इसम के साथ हम दो दो चार चार या इससे भी बाज़ ज्यादा बातें जोड़ लिया करेंगे। अच्छा जी, मुस्लिमुन, आज मुस्लिमुन मुझे बताएं कहाँ से निकला है। अस्लमा। अस्लमा, सलामा। अस्लमा, ठीक है। अस्लमा। अस्लमा, अस्लमा, अस्लम है ना, अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिम, मुस्लम और इस्लाम। ठीक है, हम QC1 से पढ़ते आए हैं, लेकिन कभी हमने इस पे ज्यादा गौर करने की कोशिश नहीं की थी कि क्या था। तो ये इस्मुल फाइल है मुस्लिमुन। अब मुस्लिमुन जो है ये मुस्लिमन मुस्लिमिन भी हो सकता है। इसको हमने कैसे सीखा नहव में, मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन, यानी कि ये मजरूर होने की सूरत में आपको दो जेर के साथ नजर आएगा। हमने कल सीखा था ज़करतुल्लाह जिक्रन ताअतन, मैंने जिक्र किया, किसका जिक्र किया, अल्लाह का। क्या किया मैंने, जिक्र किया, ताकीद आ गई। इसके बाद क्यों किया मैंने जिक्र, इताअत करते हुए। मैंने अल्लाह की इताअत करते हुए अल्लाह का जिक्र किया। आप एक ब्रैकेट में अपने पास उसको अपने जहन में बना ले कि मैंने क्या किया, जिक्र किया। कैसा जिक्र किया, जैसा जिक्र करने का हक है, मैंने ऐसा जिक्र किया। यानी इसकी अब ये जो इतनी लंबी चौड़ी ताकीद की बजाय सिर्फ मस्दर लेकर आएंगे, और मस्दर क्या करेगा, ये पूरी की पूरी कहानी बता देगा। ठीक हो गया। अब हमें जिक्रन भी नजर आ रहा, मंसूब तातन भी मंसूब नजर आ रहा है, और इस्मु जलाला अल्लाह ये भी मंसूब नजर आ रहा है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जिक्रन भी मफूले भी है, कि मैंने जिक्र किया जिक्र को, फिर इसका माना थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, मैंने जिक्र किया जिक्र को, या मैंने जिक्र किया एताअत करते हुए। तो जिक्र किया एताअत करते हुए थोड़ी बात मफूले बिही वाली इसके ऊपर पूरी फिट नहीं आएगी। हमने इनके साथ साथ जो चीजें याद की थी कि अल्लाह को हम कहेंगे मफूले बिही, जहां पर किसको वाला माना आ जाएगा तो मफूले बिही, जहां पर ताकीद आ जाएगी क्या वही, तो आ जाएगा
مفعول مطلق، اور مفعول مطلق کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ ہمارے فعل کا مصدر ہوگا جو فعل استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں تھوڑی تھوڑی سی تبدیلیاں اس طرح سے آ سکتی ہیں کہ ذکرتو کی بجائے ذکرتو ہوتا اور اس کے آگے ذکرن آ جاتا، یعنی کہ مزید فیہی کا فعل ہوتا لیکن مصدر جو ایک عام جو ہم سمپل ٹیبل کرتے ہیں ثلاثی مجرد کا اس کا آ جاتا. تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اب آپ تھوڑا سا مسکرا لیں، اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا، مسکراتے ہوئے آپ نے مزید سیکھنا ہے. ٹھیک ہو کیا؟ اب ہمارے پاس 3 اور آ گئے اسباب یا وجوہات، کب کہاں کس حالت میں. اب اس کو پورے کو پڑھیں. ذکرت اللہ ذکرا طاعتا صباحا خلف الامام قائدا خائفا، یعنی کہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ ذکر کیا میں نے اللہ کا ذکر اطاعت کرتے ہوئے صبحوں میں امام کے پیچھے بیٹھ کر ڈرتے ہوئے. ٹھیک ہو گیا؟ اب وہاں تک ہم نے 3 جو باتیں سیکھی تھی، اب ہم مزید سیکھ رہے ہیں. یہ اب آ گیا ہمارے پاس صباحن، جی آ جائے گا جس میں آپ کا ٹائم بتایا جا رہا ہے، کس وقت آپ نے یہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت آپ نے کی یا آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اطاعت آپ نے کس ٹائم میں کی. تو میں بتا رہی ہوں کہ یہ تھا ٹائم صباحن، صبح کا ٹائم تھا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد پھر ہے کہاں، یہ کیا کہاں پر؟ خلف الامام، یعنی کہ امام کے پیچھے. خود کو ایک مسجد میں تصور کریں، امام کے پیچھے. اب یہ جو ہے خلف امام، ٹھیک ہے، امام اور امام ان دونوں میں فرق یہیں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خلفہ اور خلفہ پیچھے کو کہتے ہیں، امامہ آگے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب امام اور امام کا فرق ہم نے یہیں پر ہی سیکھ لینا ہے کہ امام ہوگا تو امام جو امامت کرواتے ہیں نا، نماز پڑھاتے ہیں، جبکہ امام کس کو کہتے ہیں؟ وہ خلفہ کا الٹ آ جائے گا، جیسے آگے اور پیچھے. اس کے بعد قائدن، قائدن کو کیسے یاد رکھا جا سکتا ہے؟ ہم قعدہ میں بیٹھ کے جب ہم تشہد پڑھتے ہیں نا تو بیٹھے ہوئے، بیٹھ کر. اب یہاں پر جو چیز ہوگی کس حالت میں، آپ کا حال کیا تھا اس حال میں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی یا میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرے جو دل کی کیفیت تھی، جو میری اندرونی کیفیت وہ کیا تھی کہ میرے اندر اللہ کا ڈر تھا، ڈرتے ہوئے. اب یہ ایک ظاہری حالت یعنی کہ باہر کی حالت ہو گئی. ٹھیک ہو گیا؟ ایک حالت ہے یہ باہر کی حالت اور یہ میری اندر کی حالت ہے. ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہو رہی ہے. ظاہری حالت کوئی مجھے دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں قیدا میں بیٹھی ہوئی، تو یہ میری ظاہری حالت ہو گئی نا. تو اسی کو ہم کہا کریں گے کہ یہ حال ہے. ٹھیک ہو گیا؟ حال اندر کا بھی ہو سکتا ہے اور باہر کا. اب ایک ہمارے پاس ہے مفعول فیہ، اور ایک آ جائے گا ہمارے پاس حال. ٹھیک ہے، وجہ ہماری کتنی ہے؟ 1 2 اور 3. ایک ہمارے پاس جو مفعول نام کے ساتھ رہ گیا ہے نا، وہ ہے مفعول معہ، لیکن وہ یہ والا نہیں ہے. پھر ہمارے 5 پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا مفعول فیہ، یہ ہمارا 2 چیزوں کا اس میں آ جاتا ہے. پھر اس کو آپ کو تھوڑا سا مزید میں بتاتی تاکہ آپ اپنی بک کے اوپر لکھ لیں. اپنی بک کا پیج نمبر آپ نکال لیں. پیج نمبر 76 نکالیں. اس کے اوپر آپ یہ 4-5 چیزیں لکھ لیں. پھر جو اس کا جو باقی رہ جائیں گے وہ جس دن ہم یہ کور کریں گے، پھر منڈے کو، اگلے منڈے کو باقی لکھ لیں گے. جہاں پر لکھا میم ہوا ہے اللہ کے 73. پیج نمبر 76 نکالنا ہے. 76 ہماری بک پہ 73 ہے. نیو بکس میں نصب نہیں وہ آج کا لیسن ہے. سسٹر نورین آپ کو آگے والا کہہ رہی ہیں کہ جو میں آگے ہم والا لیسن کہہ رہی ہوں. 20A اچھا نکال لیں، پیج نمبر 76 نکالیں. جی ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ ذکرتو کے اوپر لکھیں فعل اور فاعل، چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ لیں. فعل اور فاعل ہے.
ठीक है। और जहां पर लिखा हुआ है अल्लाह, किसको सवाल लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर लिखे छोटा सा मफूले बिही। और इसके बाद आपने जिक्रन के ऊपर लिखना है मफूले मुतलक ताकीद। ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ, ताकि आपको ये याद हो जाएंगे इंशाल्लाह अच्छी तरह। बुक में इस तरह से नाम इनके लिखे नहीं हुए, क्योंकि आप ऊपर आप लिख रहे हैं ली अजली ही और लाहू। अब एक आप बना ले इस टाइप का एरो, चलिए आप प्यारा सा बना लीजिएगा, मैं आपको उस पे लिख रही हूँ। हो सकता है कि मेरा उतना अच्छा सा ना बने। ये जो दोनों होंगे कब और कहाँ, इन दोनों के लिए हम एक ही मफूल यूज करेंगे, मफूले फी ही। फी ही किस में हुआ, सुबह में हुआ, शाम में हुआ, रात में हुआ, और कहाँ पर हुआ, ये कब और कहाँ। इन दोनों के लिए आप इसी तरह से दोनों की तरफ इशारा एक एरो सा बना के लिख ले। ये दोनों किस में आ जाएंगे, मफूले फी ही में आ जाएंगे। उसके बाद है हमारा क़ाइदन ख़ाइफन, इसके ऊपर लिख ले हाल, ज़ाहरी हाल अंदरूनी हाल दोनों लिख लें इसके ऊपर। ठीक है, ज़ाहरी बातनी, बातनी भी इसके साथ सही लिख जाता था लफ्ज़। ठीक है। अब ये जो नीचे 4-5 रह गए, ये है इंशाल्लाह जब हम कवर करते हैं तो उसके साथ हम इसके ऊपर भी नाम लिख लेंगे। ठीक हो गया। साथ अब हमारे जी हाल के साथ मफूल भी लिखेंगे, जैसे मफूले हमने पहले मफूले फी ही नहीं, लिखा इसके तो साथ नहीं लिखना, इसके साथ नहीं लिखना, ये बस हाल। इसको जैसे हम कहते हैं ना कि इस हाल में, मैं आपको वाओ हालिया बताती थी ना कि ये वाओ हालिया है और ये सारा जुमला उसका हाल बयान कर रहा है। अभी मेरे ख्याल है पिछले लेसन में भी था, इस हाल में कि तुम मुसलमान थे, हालांकि तुम जानते थे। आदत है ना, वो अन तुम यशऊरूना, ठीक है, वो उसको भी हम जुमले को हाल हालिया जुमला कहा करेंगे। लेकिन ये जो है ना हाल, इसमें अब आप वो वाली आयत लेकर आए जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से अल्लाह ताला की इबादत की, तवाफ करते हुए। इसी तरह से हमने कहा कि रुकू में और जो सुजूद, उसमें दोनों में इकट्ठा आ गया था ना, एक एतकाफ था, तवाफ था, उसके बाद फिर आ गया था इस हाल में कि सजदा करते हुए और रुकू करते हुए, राकी और सुजूद को जिस तरह से अल्फाज आए थे ना, तो वो भी हाल था। वो कैसा हाल था, वो जाहिरी एक नजर आ रहा था ना कि कोई बैठा हुआ इबादत कर रहा है या कोई खड़ा हुआ इबादत कर रहा है, रुकू में है, सजदे में, तो वो भी हमारा हाल था। ठीक हो गया। इसी तरह से जो पीछे हम काफी सारी चीजें पढ़ के आए ना, जो थोड़ा सा कि निशान लगा ले, अब वो सारी चीजें इंशाल्लाह हमें समझ में आने लग जाएंगी कि ये किस तरह से हम इनको पढ़ा करेंगे, कैसे याद रखेंगे। मैंने आपको कहा कि हमने मफाइल खमसा, यानी कि मफाइल हो गई मफऊल की जमा, ठीक है, मफऊल की जमा हो गई मफाइल। अब इसके हमने आगे लिखा था खमसा, मफाइल खमसा। खमसा किसको कहते हैं, 5 को। पाँच पाँच। 5 को। और हमने पढ़ा मफूले बिही, मफूले मुतलक, मफूले लाहू, और आज हमने पढ़ लिया मफूले फीही। एक अभी मिसिंग है, ठीक है, उसको हमने बाद में इसी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ग्रामेरियंस ने कह लें या जो जुबान बनाने वालों ने, उन्होंने इसको इसमें डाला है। ये कैसे होगा, ये बहुत कम कुरान पाक में 1 या 2 जगह पर ही यूज है, लेकिन उन्होंने इसको मफूले माहू कहकर इसमें ही शामिल किया, मफाइल खमसा में। तो हाल के साथ हमने मफूल नहीं लिखना। ठीक है, 4 हमने पढ़ लिए, 5वां अभी हमने पढ़ना है। अब क्या है, अब कब और कहाँ दोनों को हमने कहा करना है कि ये मफूले फी ही है। अभी आगे हम अगली स्लाइड पे जाते हैं और इसकी मजीद समझ आएगी। सिस्टर एक क्वेश्चन है। जी 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 बाकी तो सब समझ आ रहे हैं, वो जो है ना क्यों वाला, अतात करते हुए, और ये जो अभी हाल का आ गया डरते हुए, खाइफन, तो इन दोनों में फिर कैसे, अगर लिखा होगा तो कैसे पहचानेंगे कि ये मफूले लहू है या हाल है? अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि मैंने अल्लाह ताला की इताअत की। ठीक है, इताअत के लिए हम कहेंगे कि मैंने ये तो नहीं कहना कि मैंने खड़े होके इताअत की या बैठे हुए इताअत की या मैंने डरते हुए इताअत की। इसको हम हाल को जल्दी पहचाना करेंगे, और जो मफूले ली अजली है
वो भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में। है ये, यानी कि ये नहीं है कि है ही नहीं, माहू सबसे कम है, ली अजली जो उससे थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन वो भी कम है। लेकिन हाल इसी तरह से आपका मफूल फीही बीही मुतलक, ये चार, ये जो तीन है ये बहुत ज्यादा यूज हुए, चार। तो इंशाल्लाह जो बाकी है उसके बारे में भी देखते हैं। ये एक ही दफा में तो पढ़ने से हमें भी समझ नहीं आई थी, आपको भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। इनमें जहां जहां ये आते जाएंगे ना, हमारे कुरान पाक की आयत में तिलावत करते हुए, या जो हमने सूरह बकरा कंप्लीट करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह QC 7 में देखते हैं। अब जब तक आपका QC 6 कंप्लीट होगा, कहाँ तक QC 7 चला जाता है। तो उन आयात में जहां जहां पर ये सारे मफाइल आते जाएंगे, उनको फिर साथ साथ हम लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, फिर दोबारा से जरूरत पड़ा करती है। हम भी अपनी QC 5 की बुक, इसलिए तो मैंने कहा था लिख लें, इसके ऊपर बहुत फायदा हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है। और अगर आप लिख लेंगे सारी चीजें साथ साथ, तो जहां पर आपको कहीं पर मफूल अजली आ जाएगा, आप इसकी तारीफ पढ़िएगा, इसके बारे में QC 5 का देखिएगा नोट के, जहां पर आपके पास ये मफूल अजली बना था उसके पीछे वजूहात क्या थी, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक चीज जो सब में कॉमन है, जो एक चीज सब में नजर आ रही है, वो क्या नजर आ रही है? ये सारे मंसूब है, और मोस्टली, हमेशा तो नहीं, मोस्टली आपको ये तनवीन के साथ ही इसी तरह से नजर आएंगे। उनको पहचानना फिर और भी आसान हो जाता है। मैं आज सिस्टर हफ्सा से भी कहती, मैंने कहा लगता है मफूले मुतलक सबको पसंद आया, मफूले लहू किसी को शायद ज्यादा मुश्किल लग गया, उसकी कोई मिसाल नहीं आई। फिर मैंने खुद भी सोचा, सिस्टर हफ्सा ने भी देखा, वो वाकई थोड़ा सा उसको ढूंढना, खुद से ढूंढना मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम इसको समझते जाएंगे, फिर उसके बाद ये होगा कि हम इसको मजीद निखार में लाएंगे कि किस तरह से इसको और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। थोड़ा सा सर्च मैंने सुबह भी किया था कि इसको मजीद आसान कैसे किया जाए, तो इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि जो अल्फाज लिखे होते हैं वो भी कोशिश करके कि ज्यादा से ज्यादा आसान से आसान अल्फाज हों। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुरान से मिसालें मफूले फीही की, कब या किस वक्त। ठीक है, इन अताकुम आजाबुहु बयातन औ नहारन। ये जो बयात है ना, इसको आपने कहीं देख के परेशानी हो जाना कि रात वाला माना गया, तो बयातन क्या है? ये हमारा एक फेल होगा, बाता यबीतु। ये आता है रात के मानों में। जैसे घर में भी रात गुजारी जाती है, जिनके जो कहते हैं कि कयाम का जो है मस्कन एक कह ले, तो जो रात के मानों में लैलन औ नहारन भी आ जाया करता है, इसी तरह से बयातन औ नहारन। तो बयातन जहां पर आता है, यकीनन घर के अंदर जो रात गुजरी होगी, कोई ना कोई वजूहात होंगी जिसकी वजह पर यहाँ पर खास तौर पर बयातन कहा गया। यानी कि ये भी यहाँ पर हम एक क्यास आराई कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह तफसीरात में तो बहुत कुछ लिखा होगा, समझा जा सकता है वहां से, कि हो सकता है कि रात में सोए पड़े में अपने घरों में मौजूद अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ पड़े। देखें, बयातन दिन को या रात को, दोनों किस चीज के बारे में बता रहे हैं? टाइम के बारे में बता रहे हैं, वक्त के बारे में बता रहे हैं। ठीक हो गया, कब किस वक्त, रात को या दिन को। इन आताकुम अजाबू, इसकी वो जो तरकीब है उसको भी हम देख सकते हैं। अजाबू को हम बनाए आता के लिए फाइल, कुम को हम बना दे मफूले बिही, हु को बना दे मुदाफ इलैह, औ को बनाएंगे हम हरफे अतफ, और ये हमारा क्या बन जाएगा? अगर आप पढ़े तुम पर उसका अजाब रात को या दिन को। अब रात को या दिन को हमें मंसूब भी नजर आ रहा है, और ये हमें इसी में नकिरा में भी नजर आ रहा है। इसको हम इसी तरह से हाईलाइट करके अपने पास रखें कि ये यहाँ पर वक्त की बात हो रही, तो ये मफूले फीही की बात हो रही है। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी। अच्छा, तो ये जो कबला है ना, कबला, इसको भी हम जर्फ के माना में लेते हैं। ये भी वक्त बताता है ना, जमाना बताता है, तो ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा जरफे जमा। ठीक है, और तुलू इस शमसी, ये भी कौन सा वक्त था? तुलू इस शमसी, कबला तुलू इस शमसी, सूरज के निकलने से पहले। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका कबला, कबला को हम बनाएंगे अपना
मफूल फीही, और कबला के बाद तुलूई बन जाएगा मुदाफ इले। अब यहाँ पर जर्फ प्लस मुदाफ है, और अगर इसके आगे जैसे मैंने बात की थी ना, कबला के आगे मुदाफ इले ना होता तो ये कबलू होता, लेकिन मुदाफ इले मुरक्कब इजाफी बनने की वजह से ये कबला है, और कबला हमारा क्या बन गया, ये हमारा मफूल फीही बन गया। ठीक है, तुलू शमसी, सूरज के निकलने से पहले, कि वो एक टाइम होता है ना सूरज से निकलने से पहले, अब वो टाइम वो जमाना बताया गया तो उसको मफूले फीही में हम ले आएंगे। इसके बाद है दाउतु कौमी लैलन व नहारन, मैंने दावत दी अपनी कौम को रात दिन, लैलन व नहारन। अब लैलन रात का टाइम, नहारन दिन का टाइम, तो ये दोनों भी हमारे मफूले फीही में शामिल हो गए। अब कौमी, कौमी वैसे तो ये बन रहा है यहाँ पर मफूले बिही, अब मफूले बिही तो बन ही रहा है, अब जबर क्यों नहीं नजर आ रहा है, वो जो रब्बी में था बिल्कुल ये इसकी कंस्ट्रक्शन वैसी सी हुई है कि कौमा प्लस ये था, लेकिन ये जो अपनी तरफ वाली याए मुतकल्लिम है ये खा जाती है अपने से पीछे वाली हरकत और जेर को ले आती है। ठीक है क्या? और ये जो हम नई नई चीजें पढ़ते हैं इनको हम अप्लाई करते जाएंगे, ये उतने ही आसान हो जाएंगे जैसे अब आप आंखें बंद करके बताते हैं कि मुस्लिमून अगर लिखा हो तो मुस्लिमूना वाली जमा बनेगी, मुस्लिमन और मुस्लिमीन की जमा मुस्लिमीन वाली बनती है। इनकी इंशाल्लाह ये इतना आसान होता जाएगा, फिर आपको ये ढूंढने का मजा भी आया करेगा कि ये यहाँ पर ये बन गया और ये बन गया। अच्छा जी, इज युबायिऊना का तहत शजरती, अच्छा जी, जबकि वो तुझसे बैत कर रहे थे दरख्त के नीचे, इसको आपने मफूले फीही में ही लेके जाना है। ठीक है, जर्फ है यहाँ पर, पांचवी कंडीशन बताइए कि क्या हो सकती है। अब ये जितने भी हैं तहता, फौका, इसी तरह से मा, इंदा, ये सारे क्या हैं, ये हमारे जर्फ हो जाते हैं, अला ऊपर। ठीक है, अब ये जो अला है वो चूंकि हरफे जर है उसको हम इसमें नहीं लेके आ सकते, तो उसके बजाय जो फौका है ऊपर वाला फौका उसको हम लेके आते हैं। जैसे हम इंदा और मा के साथ हमने पूरे पूरे टेबल बनाए थे ना, हमने इसका इंदा हूँ, तो वहां पर क्यूसी1 में क्या कहा करते थे कि ये इस्म है, तो वो एक आधी बात थी। पूरी बात क्या है कि इंदा इस्म तो है लेकिन ये इस्म जरफे जमा या मकान जो भी हम इसको कहना चाहे जमा है वैसे, क्योंकि ये यहाँ पर वक़्त की बात हो रही है। इज युबाजी ऊना का इज युबाजी ऊना, और उसके बाद का क्या हो जाएगा, का हमारे पास मफूले बिही हो जाएगा। तहता हमारे पास है तहता, जब वो तुझसे बैत कर रहे थे, तहता नीचे, किस चीज के नीचे, अशजरती। अब किस चीज के नीचे, ये हमारी मुदाफिले की जोड़ी बन गई, तख्ता जर्फ है और किस चीज को बता रहा है, ये उस वो जो कहाँ पर कौन सी वो जगह थी, जगह को बता रहा है। इसके बाद बनैना, व बनैना और बनाया हमने, फौका ऊपर, तुम्हारे ऊपर क्या बनाया, सब अंशिदादन। अच्छा जी, कुम को हमने कर लेना है यहाँ पर मुदाफिले, फौका हमारे पास आ गया है इसम जर्फ यानी के मफूले फीही। तो इस अगर जुमले में देखा जाए, वह बनैना फौकाकुम सब अंशिदादन, तो यहाँ पर हमें मफूले बिही नहीं मिला, क्यों हो गया। अच्छा जी, सब अंशिदादन क्या बन जाएगा, सब अंशिदादन मुरक्कब तौसीफी, तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, इसी तरह से देखते रहा करेंगे ये। सिपा की अब जोड़ी सब अंशिदादन भी कुछ ना कुछ बन जाएगा, लेकिन अभी हमने यहाँ पर सीखना नहीं है। वला तुकातिलूहुम, और मत कत्ल करो या लड़ाई करो, तो कातिल एक लड़ाई के लिए भी आ जाता है। इंदल मस्जिदिल हरामी, इंदा, इंदा हमारे पास जर्फ आ गया। और अच्छा, अब ये जो चीज है ना, इसको हमने इस तरह से भी याद रखना है कि यहाँ पर अगर कोई हरफे जर होता तो हरफे जर ने इसको जार मजरूर करना था, लेकिन इंदा और मा क्या करते हैं, ये मुरक्कबे इजाफी की जोड़ी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस्म है, जर्फ है, तो ये यहाँ पर ना सिर्फ मफूले फीही बन रहा है बल्कि उसके साथ साथ ये मुदाफ मुदाफिले की जोड़ी बन गई। लेकिन इसके आगे अल मस्जिदिल हराम, ये एक और जोड़ी बन रही है। कौन सी जोड़ी बन रही है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी ताल्लुक की जोड़ी। अल तौसीफी, मस्जिदिल हराम, तौसीफी।
अच्छा जी, जब भी आप मुरक्कबे इजाफी की जोड़ी कहें ना, फौरन से देखें कि कहीं आपके मुदाफ अल्लाह पर अल तो नहीं आ रहा, मीम तो नहीं आ रही। ठीक है, वला तो कातिलू, ये हमारा वो, अब जो मैं बात करी थी कि एक लाइन नाफिया है, एक लाइन नाहिया है, तो यहाँ पर मना करने वाला वो है वला तो कातिलू, और मत लड़ाई करो हम तुम सब, यानी कि वो सब, ये जिनको कहा जा रहा था इसलिए हम वाली आ गई जमीर, तो हम यहाँ पर आ जाएगा हमारा मफूले बिही। अब ये आ गया हमारा हाल। हाल को पहचानना, जैसे मैंने सिस्टर को भी बताया कि हाल को पहचानना ज्यादा आसान है। जैसे आप देखें, यज़कुरून अल्लाह, जिक्र करते हैं, वो सब जिक्र करते हैं, पूरा बना ले, वो सब जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करते हैं? अल्लाह का जिक्र करते हैं। और किस हाल में करते हैं? कयामन, कयामन व क़ुऊदन, कयाम करते हैं ना, हम नमाज में कयाम करते हैं। और व क़ुऊदन, यानी कि क़ुऊदन, सॉरी, क़ुऊदन, बैठे, जब हम वो सलाम वगैरह फेरते तो शौद, उसको क़िदा कहते हैं। आप नमाज की किताबों में देखिए, वहां पर ये लफ्ज आपको लिखा हुआ मिलेगा, बैठ जाना। ठीक है, क़ुऊदन, बैठे हुए। जिक्र करते हैं अल्लाह का, किसका जिक्र करते हैं? अल्लाह का। अब ये कयामन भी हाल है और क़ुऊदन भी। ये अब मैं अगर आपसे पूछूं, ज़ाहरी हाल है या फिर ये अंदर का हाल है? जाहिरी हाल। जाहिर। दोनों ज़ाहरी, जाहिर। दोनों ज़ाहरी, और एक खारिजी भी लिखा हुआ ना, बाहिर वाला हाल। अच्छा जी, उदउ, ये जो है ना, हाल पहचान लेंगे, उसके बाद खारजी, दाखिली, ये सारे नहीं याद करने पड़ते। अच्छा जी, उदउ, दुआ किया करो, रब्बा। अच्छा जी, रब्बा, रब्बा को हम क्या बना लेंगे? मफूले बिही। इसके बाद है कुम, कुम को क्या बनाएंगे? रब्बा और कुम, इसम और इसम जमीर, क्या बन जाएगा ये? मदाफ मदाफिल है। मुदाफ मुदाफ इलैह। और इसके बाद हमें एक और मंसूब चीज नजर आ गई, तदर्रुअन व खुफियतन, गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके। ठीक हो गया। अब ये जो तदर्रुअन व खुफी, जो बंदा गिड़गिड़ा के मांग रहा था तो नजर आ रहा था ना, और खुफिया में, किसी को तो नहीं पता किसी के अंदर का हाल, तो ये हमारे पास ज़ाहरी और खारजी, ये बातनी, दोनों तरह के हाल हमारे पास आ गए। वदऊहु, और पुकारो उसको डरते हुए, व त्वमान, खौफन व त्वमान, खौफन, खौफ भी, यानी कि ये अंदर वाला ये हाल होता है ना, और त्वमान, उम्मीद के साथ, तमा। हमने, मेरे ख्याल में ये वाला टेबल भी पढ़ा हुआ, लालच करना, किसी चीज की तमा करना, उम्मीद करना, जब अच्छे कामों के लिए आए तो उम्मीद वाला माना, और अगर ये जिस तरह लालच वाले मानों में आए तो फिर उसका माना उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता। तो वहां भी जो था ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लफ्ज बयान किया, तो उनको था अगर कि सब लोग इस्लाम की तरफ आ जाएं। अब ये क्या है? ये अंदर का हाल है। और इंशाल्लाह इसको हमने जब मजीद मिसालों के साथ, ये थोड़े से अल्फाज मुश्किल हैं, कुरान से मिसालें हैं, और इसमें हम कोई इस तरह का पीछे नहीं बदल सकते, आगे से कोई अल्फाज नहीं बदल सकते, तो ये अदला बदली से बचने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ और जुमले इस तरह के ढूंढेंगे, कुछ जो हमने पढ़े हुए उन जुमलों को ले आएंगे इसमें, या जो हमने देखे थे कि अपनी क्लास में सीखे, उन सब जुमलों को हम यहाँ पर इंशाल्लाह देख के फिर ये सारे हाल, और जितने हमने आज अभी तक 9 किस्म के मंसूबात पढ़ लिए, इनको देखेंगे। अब किसी भी आयत मुबारका को देखते हुए आपने ये सारी चीजें नहीं ढूंढनी। जैसे अभी हमने पीछे जो पढ़ा, उसमें मफूले फीही नजर आ गया, बिही नजर नहीं आ रहा, तो ये जरूरी नहीं है, और ना ही ये तरतीब है। आपने इसको इस तरह से भी नहीं देखना कि पहले मेरे पास फेल आ गया तो उसका मफूले बिही आ गया, तो अब उसके बाद मफूले मुतलक आ गया, उसके बाद, ये तरतीब भी जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी में हाल हो, किसी में मफूले फीही हो, किसी में सिर्फ मफूले बिही हो, और किसी में मफूले बिही ना हो, सिर्फ और सिर्फ मफूले फीही हो। तो ये सारे जो जिस तरह से हमारे असबाक में आते जाएंगे, जो कुरान पार्ट में, लेसन में, या फिर इसी तरह से हमारी ग्रामर में आते जाएंगी आयात वगैरह, इनको हम साथ साथ आइडेंटिफाई भी करेंगे, इनके नाम भी हम याद रखने के लिए कुछ आसान आसान चीजें आपके लिए मिसालें वगैरह ढूंढते हैं, तो ये इंशाअल्लाह हो जाएगा आसान। जब हम पहली दफा पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा उसको समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता
اس کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے. اچھا یہ والے ترجمے وغیرہ اس میں چونکہ کوئی حال کا نہیں، صرف خالی ٹرانسلیشن ہے، ان کو ابھی ہم فی الحال روکتے ہیں. اب ہم نے کیا چیز یاد رکھنی ہے؟ اب ہم نے 9 حالت نصب کی یاد رکھنی ہے. اپنے پاس بک میں لکھ لیں، نوٹ بک میں لکھ لیں، رجسٹر پہ، جہاں آپ کے پاس آپ نے اپنی نئی نئی چیزیں لکھی ہوں کہ گرامر میں آج ہم نے یہ نیا پڑھا، وہاں پہ لکھ لیں. کیونکہ یہ چیزیں بدلنی نہیں ہے، یہ لکھی جا چکی ہیں، ان کے یہی نام ہے، یہ بدلنے نہیں ہے. کیونکہ قرآن پاک نے نہیں بدلنا، تو قرآن پاک سے ریلیٹ جو چیزیں، کیونکہ یہ بہت ساری سرچ کے بعد بہت لوگوں نے وقت لگا کر ان چیزوں کو بنایا، اور یہ وہ چیز منظر عام پر آتی ہے، یا وہ چیز جسے سب لوگ فالو کرتے ہیں، جس پر زیادہ سے زیادہ علماء کا اتفاق ہوتا ہے. اب جب ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو کہیں کہیں پر ہمیں تھوڑا تھوڑا سا فرق بھی نظر آئے گا. وہ فرق وہاں پر نظر آئے گا کہ جیسے ہم کسی چیز کو مفعول بھی کہہ رہے ہیں، مفعول فیہ بھی بن رہا ہو. اب ہم مفعول مطلق کہہ رہے ہوں لیکن وہ ترجمے کا حساب دیکھے تو ہو سکتا ہے وہ مفعول مصدر تو آ رہا ہو لیکن مفعول مطلق نہ بن رہا ہو. جیسے اب آپ دیکھیں گے جو ہمارا تھا مفعول لہو، اور اسی طرح سے ہمارا ہے یہ جو آج ہم نے پڑھا حال. اب آپ دیکھیں خائفن کو دیکھیں، طاعتن کو دیکھیں، ذکرن کو دیکھیں، سارے دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے. مفعول بھی پہچاننا بھی آسان ہے، اور ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ وہ ہم نے ال کے ساتھ بھی پڑھا، ال کے بغیر بھی پڑھا. لیکن اس کے بعد آ کے یہ جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے زیادہ تر اسی طرح سے ہوگا، تنوین کے ساتھ ہوں گے. اس طرح سے بھی تھوڑی سی پہچان آسان ہو جاتی ہے. باقی انشاءاللہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں ڈھونڈتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کو مثالیں نظر آتی ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ مجھے اس جگہ پر ترتیب ایسی سمجھ آ رہی ہے. گروپ میں شیئر کریں، پرسنل پہ، جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو شیئر کریں. گروپ میں شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اور بھی ماشاءاللہ سے باقی سارے لوگوں کو سمجھ آ جاتی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وہ سوال نہ آیا ہو، وہ آیت نہ گزری ہو، تو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں. جی سسٹر آسیہ. مجھے نا سسٹر منیزہ کی بات سمجھ آ رہی ہے. جیسے ہائی فن ہوتا ہے نا خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اب وہ وجہ بھی بن سکتی ہے کہ ڈر کی وجہ سے وہ کوئی کام کر رہے ہیں، اور وہ کنڈیشن بھی ہے خوف. تو تو یہ یہ ہو اتنی بھی جب ہائی سکتا ہے کہ فن کہیں پر استعمال. وہ وجہ آ جائے، یہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے. ہم نے تو صرف چیدہ چیدہ جس سے بیچ میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے قرآن میں سے، مطلب میں نے تو نہیں، لوگوں نے جنہوں نے یہ کیا انہوں نے سب سے آسان والی مثالیں رکھی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا نا حال تو آپ کو اتنا نظر آئے گا، بار بار آپ خود کہنے لگ جائیں گے یہ حال ہے. اب جیسے میں اور سسٹر حفصہ پڑھ رہی ہوتی نا، تو جیسے اب دروس کی کتاب، وہ کتاب ہماری قرآن پاک کی، اس میں عربی تھوڑی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے کہ اچھا اب یہ مفعول فیہ ہوگا، یہ یہاں پر مفعول مطلق ہوگا. اور یہ سسٹر حفصہ پہ اچھی سی پیاری سی ٹپ بھی آ رہی ہے. نہیں، مجھے وہ یاد آ گیا، سر سے کہتے تھے ہمیں حال والا ترجمہ کر کے بتائے نا، ہمیں نہیں ایسے ہاں سمجھ آ رہی. تو اس کا یہ کر سکتا ہے اس حال میں کہ وہ ڈرے ہوئے تھے، اس طرح کر کے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہے. اور دوسری جیسے سسٹر نورین بتا رہی ہیں کہ ایک چیز ہو سکتا ہے کچھ گرامرینس نے اس کو حال بنایا ہو، کچھ نے اس کو کچھ اور لیا ہو. تو یہ تھوڑی سی آگے کچھ اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں. انشاءاللہ کھڑکی کھلی رکھنی ہے. ہاں جی تو انشاءاللہ سمجھ آ گئی. کچھ ویسے بھی دیکھیں نا، تبدیلی قرآن میں نہیں ہونی، قرآن لکھا جا چکا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے اتارنا اتار دیا. اب یہ گرامر وغیرہ ساری بعد میں بنی ہے نا، اپلائی کرنا اس کو، یہ سب کی. دیکھیں آپ ایک کلاس میں جیسے اب ہم سب جمع ہیں، 10 لوگ ہیں، 11 لوگ ہیں، 12 لوگ. اب جو میں بول رہی ہوں آپ سب اپنے اپنے حساب سے لکھیں گے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو کسی بھی کلاس میں آپ ایک ٹیچر کے طور پہ آپ سارے بچوں کو ایک جیسا پڑھا رہے تھے، آپ ان کو کہیں کہ یہ میں نے آج آپ کو ایک لیکچر دیا ہے، آپ نے اس میں سے خود اپنے الفاظ میں لکھ کے لانا ہے. جب اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو کسی بھی 2 بچوں کا بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جس کو جہاں پر جو چیز زیادہ صحیح لگ رہی، جس نے جس پر زیادہ فوکس کیا، غور کیا، گرامر کے جس پہلو میں جس کو زیادہ صحیح جو چیز لگی اس نے وہی لکھ دی ہو. اس کے لیے جب انشاءاللہ آپ آئیں گے نا کچھ 6 میں 7 میں، پھر یہ سارے مسائل جو ہے نا یہ چھوٹے لگنے لگ جاتے ہیں. پھر وہاں پر اور تھوڑا سا وہاں پہ کھڑکیاں اور زیادہ زیادہ جالی بن جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے، پھر تو یہ کھڑکیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن بہت مزہ آتا ہے اس میں. اب آپ نے یہ سن کے پریشان بھی نہیں ہو جانا.
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब आप देखें, आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें आगे। QC 1 में तो हमें ऐसे लग रहा था कि ये तो कितना आसान सा QC है, ये कौन सा कोर्स है इतना आसान। 2 में आते ही थोड़ा सा हमें अलर्ट होना पड़ गया ना, कि वहां पर तो एक नई चीज आ गई। 3 में आए, मजीद हमने चीजें मजीद पीही के नाम से सीख ली। QC 4 में इतनी तेजी से हमने ग्रामर की जो बची कुची चीजें सर्व की थी पढ़ी, कि ऐसे लग रहा था कि ये सारे तो पता नहीं कभी हम कवर कर पाएंगे ना। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती, जैसे आज आपने मजहूल को देख के पहचान लिया। आप मजीद फीही के ना सिर्फ देखें, जैसे मुस्लिम पूछा था, अफाल को पहचान लेते, बल्कि आप उसके साथ साथ उनसे मिलते जुलते आवाजों के औजान को समझ लेते हैं। इसी तरह से आपने इसम सिफा, इसी तरह ज़र्फ वगैरह सारी चीजें अब आपको याद होगी। कैसे याद हुई है? प्रैक्टिस से। जब हम कुरान पाक की अगली आयत पे जाते जा रहे हैं, पीछे से हम देखते जा रहे हैं, यहाँ पर ये बन रहा है, ये बन रहा। अभी इन्ना का इस्म, काना का इस्म, ये वाली चीजें, और इसके साथ फेलिया, जुमले, मफूले भी, ये सारा कुछ जब आपने आगे करते जाना है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत आसान हो जाएगा। और अभी तक आप में से कोई भी नहीं आया ना टीचिंग की तरफ, अब जब आप किसी को QC 1 करवाएंगे, आपको खुद इतनी अच्छी समझ आई हुई होगी कि आप हम लोगों से बेहतर टीचर बनेंगे, ये मेरा यकीन है। और इंशाल्लाह आप सब जरूर नियत क्या करें, हर बार जब आप क्लास में पढ़ते हैं जरूर नियत क्या कर लिया करें कि अब मैंने भी पढ़ाना है। और इंशाल्लाह कोशिश करें ये जो QC की होती है ट्रेनिंग, इसमें जरूर आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं आप। तो इस उम्मीद और दुआ के साथ हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर सिस्टर्स, आप लोगों ने बड़ा इत्मीनान से बैठ के सुना मुझे। जी बहुत शुक्रिया मैम। मैं कह रही हूँ आपने जो 9 हालतें बताई हैं उसमें आपने हाल को भी शामिल किया है। हाल को भी शामिल किया। मैंने सिर्फ आपको मतलब एक अलहदा से जो करके बताए ना, वो है मफाइले खमसा। हाल को आपने मफूल नहीं कहना, बस ये जो मेरा आज का नुक्ता था ना, जो आज की समझाने की बात थी, वो ये थी कि मफाइल 5 होंगे। मफूले बिही, मफूले मुतलक, इसके बाद मफूले लाहू, इसके बाद मफूले फीही, और एक और आ जाएगा मफूले माहू। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये इसका हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लेकिन कुरान मजीद में भी 1 या 2 मिसालें, ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको शामिल किया गया है मफऊल में। तो बाकी आगे हमने और भी तो नसब की पढ़नी है ना, उनको फिर हमने मफऊल नहीं कहा करना। ठीक हो गया? आज का आप हाल याद रख लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।